Hello students, today we will start Unit 8, that is simplification of numerical expressions. Now do you remember the four basic mathematical operations? That is addition, subtraction, multiplication and division, right? These are the four basic mathematical operations that you have learned. Now sometimes we need to carry out two or more operations at a time. Generally, what we have learned, we have done addition separately, subtraction separately, multiplication separately and division separately. But sometimes हमें टू और मोर ऑपरेशंस को एक ही टाइम में करना पड़ता है, सेम क्वेश्चंस में हमको कैरी करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल 70 plus 20 divided by 2. So in this question आपको क्या दिख रहा है कि एक ही क्वेश्चन है और उसमें आपको कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए? 2. एडिशन भी आ गया और डिवीजन भी आ गया. और 30 multiplied by 6 minus 25. So here again यहाँ पर भी फिर 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए और इससे ज्यादा ऑपरेशंस भी आ सकते हैं. सपोज +3, इसमें आपके 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए. सो इन सच केसेस हाउ कैन वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड व्हाट वी कॉल देम? सो दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. सो व्हाट आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस? A mathematical expression, a mathematical expressions in which two or more operations means ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस occur together is called a numerical expression. So now I hope you understand that what is numerical expression. So ऐसे mathematical operations जिसमें 2 or more operations हमारे एक साथ आ जाते हैं. Like here are the examples. यहाँ पर आपका addition भी है और division भी है. In this case multiplication, subtraction, addition, there are 3 mathematical operations. So such type of mathematical expressions are called numerical expression. Now I hope it is clear to you. Now the question is how we can solve these numerical expressions. हम इनको कैसे solve करेंगे? So for that, to solve a numerical expression, we follow a simplification rule. हमें क्या याद रखना है? एक simplification rule है. Simplification rule. ये आपको learn करेंगे और ये आपके कभी भी आपके 2 और मोर जो ये ऑपरेशंस अगर सेम क्वेश्चंस में आते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय दिस सिंप्लीफिकेशन रूल. सो नाउ व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन रूल? दैट इज, आपको ये याद रखना है डी मैथ्स. क्या लर्न करना है? डी मैथ्स. ये वर्ड याद रहेंगे. व्हाट इज द वर्ड? डी मैथ्स. आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसको आपको बार बार बोलना है. डी मैथ्स, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डी मैथ्स? डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, and then A for addition, S for subtraction, right? So division, multiplication, addition, subtraction, these are the 4 mathematical operations, right? और इस ऑर्डर में हमको सिंप्लीफाई या क्वेश्चन को सॉल्व करना है.
कैसे? फर्स्ट हमको क्या करना है? डिवीजन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? सॉल्व डिवीजन. सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, राइट. देन थर्ड स्टेप में हम करेंगे एडिशन, एंड इन लास्ट स्टेप we will solve the subtraction. So this is the formula, that is DMAS, that you have to learn. और ये हमारा simplification rule है. So DMAS word is not so complicated, so ये easily learn हो जाएगा आपको. DMAS, division, multiplication, addition and subtraction. So now let us try to understand that how we can solve or simplify the numerical expression by this DMAS, right? So for that, let us take an example. Suppose 30 multiplied by 16 minus 10. So what is this? This is a numerical expression. Why? Because it has two operations, mathematical operations, right? That is multiplication and subtraction. Now here is the simplification rule, DMAS. So DMAS में यहाँ पर लिख देता हूँ, so that आपको ये बार बार लिखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा और इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा. So what is our first step? Division. What is there? Division. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कहीं डिवीजन है? No, there is no division. So ये हमारा स्टेप कैंसिल हो गया. Now move to the next one. Next one is multiplication, right? So multiplication हमारा second step है. So is there any multiplication in the question? Yes, there is. So आपने क्या करना है? जो ये आपका multiplication वाला है इसको हम करेंगे multiply it. So 16 3s are 48 and 0 480, right? इसको हमने multiply कर लिया. Now What about this 10? तो ये हमारा एज इट इज हमने इसको साथ में रखना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या सॉल्व किया? मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? हमने सिर्फ वही स्टेप किया जो हमें करना है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. बाकी को हमने बिल्कुल भी नहीं छुआ, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा. नाउ मल्टीप्लिकेशन वी हैव डन. नेक्स्ट स्टेप इज अवर एडिशन. इज देयर एनी एडिशन इन द क्वेश्चन? सो यहाँ पर अब हमने ये नहीं देखना, ये सॉल्व करके हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया. यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है. यहाँ पर आपने देखना है, इज देयर एनी एडिशन? नो, देयर इज नो एडिशन. सो कट इट. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? व्हाट इज अवर लास्ट स्टेप? दैट इज सब्ट्रैक्शन. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट इज लेफ्ट इज 400. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 480 माइनस 10 इज 470. So this is the answer. और अगर मैं इसको किसी और वे से सॉल्व करूंगा तो आंसर विल नॉट कम और रॉन्ग आंसर आएगा. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज 9 divided by 3 plus 6 multiplied by 2. So here we have taken the example in which there are 3 mathematical operations. So in this numerical expression we have to solve 3 operations, right? So what is the simplification rule? That is DMAS. ये आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं अभी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो देयर इज नो नीड टू राइट DMAS अगेन एंड अगेन, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए. तो आप भी अभी स्टार्टिंग में ये लिखेंगे साइड में क्वेश्चन के, और आपको उससे स्टेप्स याद रहेंगे कि आपने कौन सा स्टेप कर लिया है और कौन सा अभी करना है. व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? दैट इज डिवीजन. तो डिवीजन का है हमारे क्वेश्चन में. यस, देयर इज डिवीजन. सो 9 divided by 3. So 9 divided by 3, do it. So 3 3s are 9. आप डिवाइड करेंगे. So what is the quotient? 3. इसको डिवाइड करके है हमारा 3. 3 3s are 9. और बाकी स्टेप्स को हम क्या करेंगे? एज इट इज नीचे उतार लेंगे. राइट? नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? डिवीजन वी हैव डन. नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेशन. इज देयर मल्टीप्लिकेशन इन द क्वेश्चन? यस, देयर इज. सो मल्टीप्लिकेशन 6 multiplied by 2. So we have to multiply 6 by 2 first.
एडिशन भी है, बट हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें एडिशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन रूल बोलता है। सिंप्लीफिकेशन रूल बोलता है कि डिवीजन के बाद क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। हम एडिशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट। सो मल्टीप्लिकेशन, बाकी को हम एज इट इज लिखेंगे, 3 प्लस 6 multiplied by 2, 6 2 is 12, 6 2 is 12, and then multiplication we have done. What is our next step? That is addition. So yes, there is addition. So 3 plus 12 is 15. So अब subtraction तो हमारा नहीं है यहाँ पर, so we have done, and this is our answer, right? So let us take one more example. Simplify 20 minus 3 multiplied by 5 plus 6. So solve this numerical expression. So what is our rule? Simplification rule, that is D mass. So what is our first step? That is division. So but you can see here that there is no division in this question, so leave this step, move to the next one, that is multiplication. Is there multiplication? Yes, there is. So here 3 multiplied by 5, 3 multiplied by 5, we will multiply it first, और बाकी जो है हम उसको as it is लिख लेंगे. So here 20 को हमने कुछ नहीं करना है, माइनस को भी कुछ नहीं करना है, 3 5 is 15. We will write 15, and what is plus 6, right? So multiplication हमने कर दिया. Now what is the next step? That is addition. So अब हमने क्या करना है, addition करना है. क्या करना है, हमने add करना है. So now you can see here, हम add किसको करेंगे, एडिशन का साइन है हमारा 15 एंड 6 के बीच में, बट 15 जो है उसके साथ क्या साइन है, नेगेटिव साइन, माइनस साइन है. सो वी कांट ऐड इट. इनको हम ऐड कर सकते हैं? नो, माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस आपस में ऐड बिल्कुल नहीं होते. सो इनको हम ऐड नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस, प्लस और माइनस आपस में ऐड नहीं होते. So we have to rearrange these. हमको rearrange करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस आपस में ऐड नहीं होते. दोनों क्या होने चाहिए, प्लस साइन वाले. और साइन हमारा कौन सा होता है, अब ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन किसका है, 6 का है. माइनस साइन किसका है, 15 का है. और 20 का क्या साइन है, जिसके पास कोई साइन नहीं होता दैट इज उसके साथ प्लस साइन. उसके साथ क्या साइन है, प्लस साइन. जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ एडिशन होता है, जो हम नहीं लिखते हैं जनरली. अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा. सो हम सिर्फ पॉजिटिव जो साइंस हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं. सो हमको ये क्या करना पड़ेगा, रीशफल करना पड़ेगा. हम क्या करेंगे, 20 प्लस 6 माइनस 15. कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, क्वेश्चन को हमने इसको रीअरेंज कर दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा. सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड दिस स्टेप. जब हम ये हमारा जनरली सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस, एडिशन के केस में आता है. अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर माइनस में आ जाता है सो हम उसको ऐड नहीं कर सकते. माइनस और प्लस आपस में ऐड नहीं होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन ही आपस में ऐड होंगे. सो कीप इट इन माइंड दिस स्टेप. सो हम यहाँ पर ये दोनों के बीच में तो माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस था, बट हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते. हमें इसको और 20 को दोनों को साथ में लाना पड़ेगा ऐड करने के लिए, क्योंकि इसके साथ भी पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन, और इसके साथ भी प्लस साइन है. नाउ इस टाइप का क्वेश्चन आपका वर्कशीट में भी होगा. सो कीप इट इन माइंड दिस पर्टिकुलर स्टेप. इनको रीअरेंज किया, 20 प्लस 6 अब हमारा एडिशन है, ऐड करेंगे हम, दैट इज 26 एंड माइनस 15 को एज इट इज लिखेंगे. सो एडिशन हमारा हो गया है. लास्ट स्टेप इज अवर सब्ट्रैक्शन. सो 26
minus 15 is our 11. So 11 is the answer. So हमारे सारे steps हो गए हैं cover. So this is the answer. So in next video we will do some more questions based on this simplification of numerical expression. Thank you.